بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی شطرنج کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کچھ کتب بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس سیریز میں آرتھر یوسپوف کی جو بک سیریز ہے اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم گرینڈ ماسٹرز کی گیمز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے اس سلسلے کو شروع کر رہا ہوں. اس کے ساتھ یہ میخائل تال اور میخائل بوٹوینک کا بڑا مشہور زمانہ میچ ہے، چیس چیمپئن شپ 1960 کا، جس میں میخائل تال نے یہ مقابلہ جیتا اور وہ ورلڈ چیمپئن بنے. ایک سال ہی رہے ورلڈ چیمپئن، لیکن بہرحال بنے تو صحیح. اور اس مقابلے کے اندر جو خاص بات ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور جو کتاب ہے جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو آئیے آج کی پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ میخائل تال کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے اس چیمپئن شپ پہ، اور اس کتاب کا نام ہے تال ورسز بوٹوینک 1960. جو شطرنج دیکھ کر جو ہم سیکھتے ہیں وہ گرینڈ ماسٹرز کی گیمز ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری چیز ہے شطرنج کو سمجھنے کے لیے اور شطرنج کو سیکھنے کے لیے. تو یہ تال نے خود کتاب لکھی ہے، تال ورسز بوٹوینک 1960. اور جو سیکھنے کی بات ہے اس میں اس کتاب سے، وہ ان کی انسائٹس ہیں تال کی خود. یعنی میخائل تال نے خود اپنی گیم کے بارے میں، خود اپنی چالوں کے بارے میں جو چیزیں بتلائی ہیں، جس طریقے سے انہیں اینالائز کیا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. یو ریئلی لرن اے لاٹ فرام دا وے تال اینوٹیٹس ہز اون گیمس. کسی بھی گرینڈ ماسٹر کے پاس آپ چلے جائیں، کسی بھی اچھے چیس استاد کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کتاب واقعی بہترین شطرنج کی بہترین کتب میں سے ایک کتاب ہے یہ. تو اس کے اندر جو گیمز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اور اس کتاب کا جو ترجمہ ہے وہ میں پیش کروں گا. ظاہر ہے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کروں گا، نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر سکوں اتنے بڑے کھلاڑیوں کی گیم کے بارے میں. تو تال کا جو اپنا تجزیہ ہے ان کی گیمز کے بارے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے اپنی چالوں کو اینالائز کرتے ہیں، پوزیشن کو کیسے اینالائز کرتے ہیں، اور اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کافی کچھ سیکھیں گے. تو اس سلسلے میں جو اس ٹورنامنٹ کی خاص بات جو میں نے کہی کہ ایک بہت خاص بات ہے، وہ آپ کو بتلاتا چلوں. بیسکلی چیس کے اندر ٹرینڈز رہے ہیں، ڈفرینٹ جو گرینڈ ماسٹرز کے ایراز تھے اس کے اندر ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں کہ سسٹمز آتے رہے ہیں. ایک سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رومانٹکس کا دور تھا، ایک دور کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک چیس کا دور تھا، ایک دور کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہائپر ماڈرنزم آرون نیمزووچ نے سٹارٹ کیا اپنی بک مائی سسٹم کے نام سے. جب انہوں نے لکھی تو اس کے بعد وہ ہائپر ماڈرن ایرا کہلاتا. بوٹوینک کا جو ٹائم تھا، بوٹوینک بہت زیادہ سائنٹیفک اصولوں پہ چیس کھیلتے تھے، اور یہ جو ان کا ٹائم تھا یہ سائنٹیفک چیس کا ٹائم کہلاتا. میتھمیٹیکل پرسیجن، حساب کتاب، چالوں کو میتھمیٹکلی دیکھنا، ویریشنز کو گننا، بروٹ فورس کیلکولیشن. اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سارے کا سارا جو زور تھا بوٹوینک کا موسٹلی وہ اس چیز پہ تھا کہ آپ سائنٹیفکلی سائنس کے اصولوں پہ آپ نے شطرنج کھیلنی. تال کریٹیو تھے بہت زیادہ اپنی شطرنج میں. جو لوگ جانتے ہیں میخائل تال کے بارے میں انہیں یہ پتہ ہے کہ میخائل تال بہت کریٹیو گیم کھیلتے تھے، بڑے اٹیکنگ پلیئر تھے، اور بہت سیکریفائسز لگاتے تھے اپنی چالوں میں. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کلیش ہے دو آئیڈیالوجیز کا.
ये जो चेस चैम्पियनशिप है ये क्लैश है दो आइडियोलॉजीज़ का। एक तरफ कम्प्लीटली साइंटिफिक थिंकिंग है कि यार हर चीज़ आपने मैथमेटिक्स के हवाले से देखनी है, हिसाबी किताबी रखनी है, बिल्कुल नपी तुली जांची जो वो चालें हैं, इंस्टिंक्ट का कोई काम नहीं, विजदान का कोई इसमें काम नहीं है, क्रिएटिविटी कोई नहीं है, हर चीज़ ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन है। ये बॉटविनिक का स्कूल था। तो इस आइडियोलॉजी का मुकाबला था ताल से। ताल का जो आप स्कूल तो उसका कोई नहीं था ना, इसके कोई इतने फॉलोअर्स थे। आज भी मतलब बहुत सी उनकी जो चालें हैं उसके अंदर गलतियाँ निकली हैं, सॉरी, और गलतियाँ ग्रैंड मास्टर्स ने निकाली हैं। ज़ाहिर है ओवर द बोर्ड हालात मुख्तलिफ होते हैं। जब ओवर द बोर्ड आप थिंक कर रहे होते हैं टाइम प्रेशर के अंडर, तो उस वक्त वो हार गए जो उनके मद्दे मुकाबिल थे। लेकिन बाद में जब आप बैठ के आराम से उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के और कंप्यूटर लगा के उसको आप एनालाइज करेंगे तो ज़ाहिर है वो साइंटिफिकली वो चालें गलत थी। बेशुमार चालें हैं जो ताल की जो उस वक्त बड़ी प्रेस की गई हैं, उनमें गलतियाँ निकलती हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो विजदानी तौर पे खेलते थे, इंट्यूशन उनके यहाँ बड़ा मैटर करती थी। तो वो जो इंट्यूशन है, जो आइडियोलॉजी है इंट्यूशन की वर्सेस आइडियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक ब्रूट फोर्स कैलकुलेशंस एंड करेक्टनेस, ये दो आइडियोलॉजीज़ के दरमियान मुकाबला। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब गेम्स आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह और इस किताब का तर्जुमा आपके सामने रखूँगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये पहली गेम मिसाल के तौर पे थोड़ी सी देखते हैं। मैं आज एनालाइज़ नहीं करूँगा इस गेम को, ना ही तर्जुमा कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये ताल वाइट हैं और बॉटविनिक ब्लैक हैं। तो E4 E6 फ्रेंच ओपनिंग, इसको फ्रेंच ओपनिंग कहते हैं। बॉटविनिक ने E6 खेला, ताल ने D4 फौरी तौर पे सेंटर और D5 सेंटर को चैलेंज किया। अब ये जो फ्रेंच है इसके अंदर सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इस फीले की होती है, क्योंकि इस फीले को आपने ब्लॉक कर दिया इस पॉन से। ये पॉन जो है ये जो इस वक्त आपका E6 पे पड़ा हुआ है ब्लैक का, इस पॉन की वजह से ये आपका लाइट स्क्वायर बिशप जो है ये फंस गया। जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो तो खैर इस डायगनल पे है, उसको आपने फ्री किया है, नॉर्मली यहाँ से आके वो अटैक लगाता है। तो ये किसके अंदर मसला होता है, इस फ्रेंच ओपनिंग के अंदर जो क्वीन साइड होती है वाइट की वो थोड़ी सी वीक होती है और उसको बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन ब्लैक के पास भी वीकनेसेस काफ़ी होती हैं। तो ग्रैंड मास्टर लेवल पे ये खेली जाती है, फ्रेंच डिफेंस खेला जाता है और बड़ा एनालाइज किया है इसको बॉटविनिक ने। और बॉटविनिक इनफैक्ट वो ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने पॉपुलराइज़ किया और बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस किया इस ओपनिंग का। तो ये D5 किया, तो नाइट C3 नेचुरल मूव है, बिशप B4, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मली फीला यहाँ से अटैक लगाता है, पिन किया इसको, तो E5 बढ़ गए, तो C5। अब देखें ये फ्लैंक से अटैक है, ऑलवेज सेंटर के अंदर अगर आप देखें कि आपके जो पीसेस हैं वो ब्लॉक्ड हैं तो आप हमेशा फ्लैंक से अटैक करते हैं उसको काउंटर करने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि ये दो रैंक्स हैं जिनके ऊपर जंग जारी है। तो A3 चैलेंज किया इस फीले को फौरी तौर पे। अब यहाँ पे ये फीला वापस भी गया हुआ है, मतलब बॉटविनिक ने कुछ गेम्स में फीला वापस भी लेके गए हुए हैं, लेकिन जब ये फीला यहाँ वापस जाता है तो ये प्यादा यहाँ पे आता है, इसको भी अटैक करता है, इसको भी अटैक करता है। तो बहरहाल इस दफ़ा बॉटविनिक ने B टेक्स C3 की चाल चली, तो ठीक है, B टेक्स C3, क्वीन C7 निकले तो क्वीन G4, तो F5। अब यहाँ पे ये जो F5 है इसके बाद ये en passant भी होता है, लेकिन en passant नहीं किया ताल ने, इसको भी नहीं खा सकते क्योंकि इस वक्त क्वीन यहाँ बैठी हुई है, तो इसलिए क्वीन वापस। तो जब घोड़ा आया दरमियान में तो फिर खा गए इस प्यादे को, क्वीन टेक्स G7, तो रुक G8, तो क्वीन टेक्स H7, तो C टेक्स D4, तो किंग D1। अब किंग को बचना है, ज़ाहिर फाइल्स ओपन हो रही हैं क्योंकि ये वाला अटैक यहाँ पे लगा हुआ है, तो डायरेक्ट ये चेक आएगा। अच्छा, बिशप D7, तो क्वीन H5 चेक, घोड़ा डाला बीच में, तो नाइट E2 अपना घोड़ा निकले, तो D3, तो C टेक्स D3, बिशप A4 चेक, उस जगह जाना तो पड़ेगा वापस, तो क्वीन टेक्स E5,
तो बिशप g5, नाइट c6, d4, क्वीन वापस c7, h4, e5, रुक h3, क्वीन f7, d takes e5, knight c takes e5, रुक e3, तो किंग d7, तो रुक b1, b6, नाइट f4, रुक a e8, तो रुक b4, बिशप c6। यहाँ पे एक सेकंड के लिए अगर आप रुकें तो आप देख सकते हैं कि वाइट के पास कितना मैसिव स्पेशल एडवांटेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाइट की दोनों रुक्स जो हैं वो एक्टिव प्ले में है। ये रुक इस रैंक के ऊपर खेल रही है, ये रुक इस रैंक के ऊपर खेल रही है। अब यहाँ से अटैकिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये फीला अभी यहाँ पड़ा हुआ है और रुक के साथ फीले का कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होता है अगर किंग जो है वो कास्टल्ड ना हो नॉर्मली आम तौर पे, और क्वीन और घोड़ा भी फर्जी और घोड़ा भी हैं इस साइड ऑफ द बोर्ड पे। तो इस वक्त किंग जो है इज़ फीलिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि आप देख सकते हैं ब्लैक के पास इतनी एक्टिविटी नहीं है, दोनों रुक्स जो हैं ब्लैक की वो बैक रैंक्स पे हैं, क्वीन भी इतनी अच्छी प्लेस नहीं है, घोड़ा भी इतना अच्छा प्लेस नहीं है। ये वाला जो फीला है ये बेचारा बिल्कुल मरा पड़ा है, इसके पास जाने की कोई जगह ही नहीं है कहीं पे। तो अगर यहाँ पे आएगा किसी वक्त तो फिर कुछ जो एक्टिव प्लेस को मिलेगा और वो नहीं आएगा, आ नहीं सकेगा, टाइम नहीं है इसके पास। तो इस वजह से यहाँ बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं ताल। और क्वीन वापस, तो नाइट टेक्स f4, तो रुक टेक्स f4, नाइट g6, तो रुक d4, रुक टेक्स e3 चेक, तो f टेक्स e3, किंग c7, तो c4, तो d टेक्स c4, तो बिशप टेक्स c4, तो क्वीन g7, तो बिशप टेक्स g8, क्वीन टेक्स g8, तो h5, और यहाँ पे बॉटविनिक ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये पहली गेम जीत गए ताल। तो ये गेम है जिसको हम इंशाल्लाह कम्प्लीटली एनालाइज़ करेंगे, बड़े वाज़े तरीके से देखेंगे और बड़े आराम से हम देखेंगे इस गेम को। और ताल की जो अपनी इस गेम के अंदर जो एनालिसिस है, जो उनकी अपनी चालों पे, उसको हम इंशाल्लाह उसका मुताला करेंगे। इस सिलसिले में ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप लोग ये गेम्स देख रहे हों तो मैं वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर गेम दिखाने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं टाइम लेता हूँ और बड़े तफसील से सारी बातें जो हैं वो करता हूँ। तर्जमे के अंदर मैंने तर्जमा करना है ताल की किताब का, तो मुझे टाइम लगेगा पर गेम में। तो आप लोग जब ये गेम्स देखा करें तो थोड़ा सा साथ साथ ख़ुद भी नोट्स ले लिया करें, कोशिश किया करें कि अपने सेल फ़ोन के ऊपर ये आप खोलें। मैं आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पिछली वाली जो मैंने गेम दिखाई थी इवानचुक और आर्थर यूसुपोव की, उस गेम का भी मैंने लिंक दे दिया था ली चेस पे। तो इस गेम की भी एनोटेशन के साथ जो लिंक है इस गेम का भी वो मैं दे दूंगा, स्टडी एक बना दूंगा ली चेस के ऊपर। तो उसको ज़रूर ख़ुद भी ध्यान से एक दफ़ा स्टडी करें। यू लर्न अ लॉट, यू लर्न अ लॉट। सो yeah, this is pretty much it for the introduction to this series, or inshallah see you in the first video of the series very soon. Till then, take care of yourselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.